Is it audible? Okay. This is Ravi Anand, and we are going to start second lecture of our world history. In our previous class, we have discussed about the syllabus of the general studies, and we have also briefly discussed the syllabus of the world history. Uh, Today, we will conduct our second lecture, and this will start from the decline of the Constantinople, and our journey of this class will start after the decline of the Constantinople. Before starting this class, I have a announcement for you that we, the Rahi IAS team, are going to start a new batch for answer writing that will be helpful for UPSC and state PCS students, and that will cover all the previous year's questions of mains of UPSC as well as UP PCS and other state PCS. So probably this batch will start from the first week of the July. So join this batch, and I am very sure this exercise of that batch will be very fruitful for the civil services aspirants. So now come to the topic. In our previous class, we have discussed that in the world, European civilizations played a great role, but there was no oldest civilization in Europe as compared to the Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, Harappan civilization. The first civilization, we can say, in Europe, first civilization in Europe, we can include the Greek civilization of first empire, because all the civilizations of Europe could not reach at the level of the empire building, but in India, in Arabian Peninsula, there were multiple civilizations which reached at the point of the empire building. In Europe, the first civilization that was reached up to the level of the empire building, that was the Greek civilization. But Alexander could not sustain this empire so longer, because he died, and after his death, his empire was divided among the ambitious commanders, ambitious military commanders. But after the Greek invasion over the Europe, the Eastern Roman Empire was divided among the nobles of the Franco tribe, and the major dynasty that was emerged, that was Carolingian dynasty. After the invasion by the German tribe, Europe was divided into two parts: Eastern Roman Empire and the Western Roman Empire. Western Roman Empire was divided among the Franco tribes nobles, but Eastern Roman Empire could sustain thousands years till the Turkish invasion. But a Carolingian dynasty, that was very powerful dynasty, get the title of in 800th century, Pope gave the title of Holy Roman Empire to the king of the Carolingian dynasty, because Pope realized that in future Islam will be a greater threat for the Christianity, and without support of a political power, Christianity could not sustain before the Islam. So we know, after emergence of Holy Roman Empire and decline of the Constantinople, whole the journey we have covered. But today we will discuss about the journey after the decline of the Constantinople, means the 14th century to 17th century के बीच का जो period है उसको हम cover करेंगे. It was the time of the sea voyages
technological advancement, scientific invention. It was a time of the reawakening for the Europe. It was the time known as the time period of the Renaissance and the Reformation. Before coming to the topic of the Renaissance and Reformation, I want to discuss about the socio-economical and political scenario of the Europe. Before starting the topic of Renaissance, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी उस समय यूरोप की कैसी थी इस बात पे थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। 14th सेंचुरी से आपको पता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल का डिक्लाइन हो चुका है 1453 में, एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल द ट्रेड रूट टू एशिया वर ब्लॉक्ड बाय द इस्लामिक पावर. Now the Europeans were worried about the trade with Asia because Europe cannot survive without the Oriental goods, without the consumption of the Oriental goods. In Europe, there was a heavy demand of Oriental goods. What is ओरिएंटल? ओरिएंटल अगर आप शब्द ना समझते हो तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको बता देता हूँ. 2 शब्द होते हैं, ओरिएंटल एंड ओसिडेंटल. बहुत एकदम लूज टर्म मैं समझा रहा हूँ. ओरिएंटल एंड ओसिडेंटल. ओरिएंटल मीन्स ईस्टर्न. Basically this term is used for the Oriental philosophy or Eastern philosophy. You can say the philosophy of India. And Occidental means Western or the Western thought, Western philosophy. So we loosely use the term Oriental for the East and Occidental for the West. I think now it is clear that Oriental means East, यानी इंडिया और एशिया की तरफ इशारा हो रहा है. ओसिडेंटल जब भी मैं बोलूँगा तो आप समझ लेना कि यूरोप की देशों की तरफ इशारा हो रहा है. So in Europe there was the demand of Oriental goods, and Europe cannot survive without the trade with Asia. But trade route was blocked by the Islamic power. After that, in Europe, there was a crisis. Europeans were suffering because there was no trade, no commercial actions. So, Europeans were searching another routes to Asia. So they started sea voyages. Sea voyages के लिए जो स्पिरिट थी वो यही थी, वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता. यूरोपियंस को पता है कि अगर जब एशिया के साथ ट्रेड नहीं होगा तब तक वो लोग इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस नहीं हो सकते, एंड जब तक वो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस नहीं है तब तक इस्लामिक पावर से वो लड़ नहीं सकते. इवन यूरोप की खुद की जो दशा है वो बहुत हद तक स्लेवरी और यूरोपियन ट्रेड और एशियन ट्रेड पर डिपेंड है. तो ऐसे में यूरोप को खुद को सरवाइव करने के लिए एशिया के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है. तो आप देखेंगे कि आफ्टर जीसस क्राइस्ट, थोड़ा सा आफ्टर जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी बिकम ऑर्थोडॉक्स because after Jesus Christ, 2 and 3 saints focused on the simplicity of the religion, but later saints basically focus on the ritualism and conservatism. They introduced the theory of 7 sacraments, the theory of the 7 sacraments, as well as the good work. They introduced the theory of the good work in their term. They said the good work means the
work according to the advice of the priest. They said priest is the man that was appointed, that was selected by the God. So everyone should, every Christian should follow his advice. That's why and they also presented a theory of 7 sacraments. उसमें वो रिचुअलिज्म पर फोकस करते हैं. उसमें वो बोलते हैं कि जो प्रीस्ट बोल रहा है वही करिए, है ना. एंड they presented priest as a superior human being and common human beings as a sinful creature. They said you common human beings are the sinful creature, and if you do not follow the instruction of the priest, then you all will fall in the hell. ऐसे तो ये जो है ना, एक आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिया में जो आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड जो एक थोड़ा सा फंडामेंटलिज्म डेवलप हुआ, जिसके बाद जिसके जवाब में आपको देखने को मिलेगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इमर्ज किए, ऐसे ही सेम यूरोप में क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्सी आ रही है. Christianity was becoming orthodox in nature. क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स होती जा रही थी. इसी दरमियान आप देखेंगे कि जो कॉमन पीपल हैं, जैसे मिडिल क्लास, उसका इमर्जेंस हो रहा है. कॉमन पीपल मिडिल क्लास है. मैंने आपको कल एक थोड़ा सा डायग्राम में बताया था कि यूरोप वाज डिवाइडेड इन फ्यूडल स्ट्रक्चर. दैट वाज फर्स्ट किंग, प्रीस्ट, एंड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड वाज द कॉमनर्स. द थर्ड सेक्शन, that in that section common people, they were the tax paying class, and they were the they also were the subjugated or the discriminated class. तो कॉमन जो पीपल थे जिनसे टैक्स लिया जाता था, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, लेकिन उनमें से एक ऐसी बुर्जुआ क्लास इमर्ज हो रही थी. बुर्जुआ शब्द भी हम बाद में बताएंगे. देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि एशिया से ट्रेड यूरोप करता था. यूरोपियंस एशिया से ट्रेड करते थे, जिसमें जो ज़्यादातर जो मर्चेंट्स थे वो मिडिल क्लास के थे. उसमें प्रीस्ट और किंग नहीं थे. मिडिल क्लास एशिया से ट्रेड करती थी और यूरोप में आके धन कमाती थी. दे वर अर्निंग मनी and they were becoming affluent, rich, prosperous. वो लोग wealthy होते जा रहे थे डे बाई डे. बट चर्च और प्रीस्ट उनसे बोलते थे कि you should not accumulate wealth, because accumulation of the wealth is a sinful act. If you are accumulating wealth, you will fall in the hell. So these words of the priest or the church were demotivating to the mercantile class, to the middle class who involving in the business activities. अब मिडिल क्लास को ऐसा लगता था कि भाई पैसा हम कमाएं, पैसा रखें तो हम नरक में सड़ें. पोप तो वैसे भी बोलते थे कि यू ह्यूमन बींग्स आर सिनफुल क्रिएचर, यू ऑल विल फॉल इन हेल. अगर तुम्हें हेवन में जाना है तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए पोप के, प्रीस्ट के, और एक टिकट बेचते थे स्वर्ग का कि उसे खरीद लीजिए, यानी डोनेशन दीजिए चर्च को. इफ़ यू आर डोनेटिंग मनी टू द चर्च, ओनली देन यू कैन
reach to the point, reach to the salvation, because they said donating to the church is a good work. चर्च को अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो आप जन्नत जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, या फिर हेवन जा सकते हैं, अब जैसे भी शब्द में समझे। तो यहाँ तक की बात है। लेकिन 14 से 17 सेंचुरी के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो एक तरफ तो जो इस्लामिक पावर है उसने यूरोपियंस के लिए रास्ते बंद कर दिए कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो एम्बिशस मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, वो एम्बिशस मिडिल क्लास रिस्क लेके भी आपके बाई ओशियनिक रूट एशिया को ढूंढने का प्रयास कर रही है। द एम्बिशस क्लास वाज सर्चिंग इंडिया, चाइना बाया ओशियनिक रूट, एंड इन दिस सीरीज दे फाउंड अमेरिका. Columbus reached at America, and Vasco da Gama reached at Calicut, India. So जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पे जाता है तो आपको बताएं कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो हम सिंपली वहाँ से मनी अर्न नहीं करते. We don't simply earn the money, we also earn the thoughts. Because when we go somewhere, we saw different kind of people, their ideology, their thinking process, ये सारी चीज़ें हमारे साथ आ जाती हैं. इसीलिए जब कोई गांव से व्यक्ति शहर की तरफ जाता है तो कुछ वर्षों में उसके अंदर लिबरलाइजेशन जैसे मूल्य आ जाते हैं. तो वैल्यूज लाइक लिबरलाइजेशन, गांव तक जो व्यक्ति रहते हैं, जो सिर्फ गांव तक सीमित रहते हैं, उनमें देखोगे आप आजकल तो नहीं, जैसे पुराने ज़माने में आपको देखने को मिलता कि कुछ लोग बहुत कास्ट जैसे इशू को लेके, बड़े अपनी आइडेंटिटी को लेके बड़े सजग रहते थे. उन्हें लगता था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है. बट प्रेजेंटली इट इज़ इवेपोरेटिंग इन विलेज ऑल्सो. अब लोग उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते उन सब चीज़ों को लेके. तो 14 सेंचुरी से जो जा रहे हैं लोग इंडिया की तरफ, वो लोग सिंपली वहाँ से वेल्थ अर्न करके नहीं ला रहे हैं, सिंपली एफ्लुएंट बन के नहीं आ रहे हैं, वो लोग थॉट्स भी लेके आ रहे हैं. एंड दे वर थिंकिंग दैट व्हाई वी आर डिस्क्रिमिनेटेड एज द inferior people of Europe. Even we are producer class, we are having wealth, we are doing all the effort, but a parasite class who is enjoying all the power, but we are not having that much power. So the new generation of the Europeans were against the church and the system of that was made by the European monarchy. रेनेशा इसी बीच में आता है जब आपके यूरोप से लोग बाहर विदेश में जाते हैं, व्यापार करते हैं. जब यूरोप में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, चाइना में प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है. प्रिंटिंग प्रेस आने से कागज पे किताबों को छापना आसान हो रहा है. इससे यूरोप में जो क्लासिकल टाइम का जो नॉलेज है, द नॉलेज ऑफ द ग्रीक पीरियड, ग्रीक एम्पायर्स पीरियड, द नॉलेज ऑफ द क्लासिकल टाइम was coming in the form of texts, and Europeans were reading new texts that was related to the classical period. Europeans also were in touch of Indians, Chinese, so they were diversifying their knowledge. And you can see technological changes हो रहे हैं, philosophical changes हो रहे हैं. Okay,
पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट भी लोग थोड़ा सा जाना चाहते हैं, चर्च के अगेंस्ट, चर्च को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में देखेंगे कि यूरोप में एक माइंडसेट डेवलप हुआ, यूरोप में एक दिमाग की एक सोच उपज हुई, जो यूरोप में जो ढांचा चला आ रहा है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, उसके विरोध में जाके खड़ा होना चाहता है। जो नई आइडियोलॉजी जो आ रही है वो जो यूरोप के जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको उखाड़ फेंकना चाहती है। अब ये नया सिस्टम क्या है, इस बात को समझते हैं। हम लोग आते हैं रिनेशा पे। व्हाट रिनेशा? अगर आप लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे तो आपने पढ़ा होगा, आपने जीएस जनरल स्टडीज़ में हो सकता है पढ़ा हो, स्कूलिंग के टाइम पे पढ़ा हो रिनेशा। एंड कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि रिनेशा मीन्स रीअवेकनिंग। रिनेशा रिनेशा को हिंदी में अनुवाद किया गया है पुनर्जागरण। एंड इन इंग्लिश रिनेशा ऑल्सो सेज रीअवेकनिंग। रिनेशा इज अ लैटिन वर्ड, सो पुनर्जागरण या रीअवेकनिंग, जैसे शब्द को सुनते ही लगता है कि दोबारा से जागने वाले हैं, दोबारा से जागने वाले हैं। तो जब हम दोबारा से जागने की बात करते हैं तो इसका मतलब अभी सो रहे हैं और सोने से पहले भी जागे होंगे। अगर फर्स्ट टाइम जागते हैं तो री क्यों आता? द रीअवेकनिंग मीन्स हम पहले जागे हुए थे, बीच में सो गए हैं, अब फिर जागेंगे। यूरोपियंस, सम हिस्टोरियंस सेड दैट यूरोप वाज in the classical time was intellectually conscious. In the time of Greek civilization, Europeans were very conscious about humanistic values. They were more faith in this worldliness. But after the decline of Greek civilization, Greek empire, and after 300 century, बिकॉज जीसस क्राइस्ट आए, जीसस क्राइस्ट के 200-300 साल तक क्रिश्चियनिटी ठीक रही। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि 200-300 साल बीतने के बाद क्रिश्चियनिटी बिकम ऑर्थोडॉक्स एंड बी बिकम मोर ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड, एंड दैट पीरियड इज कॉइंड एज द डार्क एज। कुछ हिस्टोरियंस उसको डार्क एज या फिर हिंदी में तो क्या बोलेंगे, अंधेरे का युग है ना। तो कुछ हिस्टोरियन उसको डार्क एज बोलते हैं। एक्चुअली रिनेशा को अगर आप देखेंगे तो 300 के बाद जो यूरोप थोड़ा सा रिजिड हो गया, उससे पहले वो लोग कहते हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम पे हम जाग रहे थे, वी वर वेरी कॉन्शियस अबाउट द ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। बट फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग डार्क एज में चले गए। ऐसा वो लोग बोलते हैं कि इन्वेजन्स हुए, एंड जर्मन इन्वेजन बाय द इस्लामिक पावर, एंड दैट रिजल्टेड इनटू द डार्क एज ऑफ यूरोप। कहाँ तक ये बात सही है हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डार्क एज को डार्क एज बोलना ठीक है, ये बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि रिनेशा आपको ये समझ में आया कि पुनर्जागरण, लेकिन इसको हम थोड़ा अंदर समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली रिनेशा के टाइम पे जो लोग होते हैं उनका अगर दिमाग आप देखोगे तो किस दिमाग के होते हैं, किस एटीट्यूड के होते हैं, किस माइंडसेट के होते हैं, अगर आपको देखना तो उसके लिए मैं एक कहानी बताता हूँ। इंडिया में काफ़ी सारी बैड ट्रेडिशंस रही हैं। इन इंडिया देयर वर सेवरल बैड प्रैक्टिसेस। सती सिस्टम और सती प्रथा was one of them.
Raja Ram Mohan Roy opposed sati system vehemently. His older brother Jagmohan died, and his wife Alka Manjari, her name was Alka Manjari. People forced Alka Manjari to sati with her husband's diseased body, with her husband's dead body. So this was completely unacceptable for the Raja Ram Mohan Roy. राजा राम मोहन रॉय ने कहा यार ये क्या हद है, क्या क्या हो क्या रहा है ये दुख की बात है कि हमारे भैया का निधन हो गया है, लेकिन एक यंग लड़की को, एक युवा स्त्री को सिर्फ इस बात के लिए आग में जला देना कि तुम्हारे पति का निधन हो गया है, अब तुम भी नहीं जी सकती क्योंकि तुम विधवा हो और तुम्हें सती होना है। और ये सब हो रहा है धर्म के नाम पर। राजा राम मोहन रॉय ने पूछा आप किस धर्म की बात करते हैं? इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सनातन धर्म, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द हिंदू धर्म, एंड विच रिलीजन यू पीपल आर टॉकिंग, आई डोंट नो। सो बंगाली पीपल बोले अरे देखो भैया, जो टेक्स्ट हमारी हैं वो संस्कृत में है और संस्कृत वाली टेक्स्ट हमको पढ़ना नहीं आता, बट हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज हमको बता गए हैं कि देखो सती सिस्टम जो है वो हिंदू धर्म का पार्ट है, इट इज़ द पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हिंदुइज्म। राजा राम मोहन रॉय सोचे यार ये तो टेंशन हो गई, लोग मान के ही बैठे हैं कि ये हमारे उसका पार्ट है, अब तो ये मानेंगे नहीं। सो उन्होंने कहा आप अपनी टेक्स्ट क्यों नहीं पढ़ते? राजा राम मोहन रॉय ने बंगालीज को बोला भाई एक बार पढ़ तो लो, तुम्हारी कौन सी किताब में लिखा है सती सिस्टम? तो वो बोला देखो हमको संस्कृत नहीं आता, ना ही हम पढ़ने के लिए इतना फ्री बैठे हुए, हमको संस्कृत आता होता तो हम सोचते भी, हम तो सिंपली बंगला जानता है। तो राजा राम मोहन सेड कि मैं उसको संस्कृत से बांग्ला में ट्रांसलेट कर दूंगा, and call any expert of Sanskrit, any expert of Vedas, and ask him, is there mentioned about the sati system? उन्होंने पूछो, बुलाओ भाई पूछो। जब पीपल ने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि there is not mentioned about the sati system और सती प्रथा in any Vedic literature, in any Vedic text। तब लोगों को लगा यार हम जब हमारे वेद में ही नहीं लिखा है, हमारी रिलीजियस टेक्स्ट में ही नहीं लिखा है, फिर हम इस चीज़ को क्यों फॉलो करते हैं? आफ्टर दैट पीपल रियलाइज्ड एंड दे अबंडन दैट ट्रेडिशन। लोगों ने उसके बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं लोगों के जो बिलीफ सिस्टम होता है उसको बदलने का एक ही तरीका है, अगर वो रेनेशा वाले पीरियड में है, अगर वो इनलाइटेंड नहीं है, अगर उनका मानसिक स्तर इतना बड़ा नहीं है कि वो यूनिवर्सल ह्यूमन प्रिंसिपल्स पे बात कर सकें, वो इस बात पे बात कर सकें कि ह्यूमनिज्म क्या है, वो इस दिस वर्ल्डलीनेस यानी कि अहिलौकिकता पर बल दे सकें, अगर उनका दिमाग इतना विकसित नहीं है तो आपको उनके ही धर्म की पॉजिटिव बातें निकाल के पहले उन्हें इनलाइटेंड बनाना पड़ेगा। सो रेनेशा में अब देखेंगे पुनर्जागरण जो होता है उसमें जो स्कॉलर्स जो उनको जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं वो क्लासिकल टेक्स्ट के थ्रू, तो उन्हें बता रहे हैं देखो भैया ग्रीक सिविलाइजेशन के टाइम पे आप कैसे थे, आपके यहाँ ये सब नहीं हो रहा था, आपके यहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, यू आर नॉट ऑर्थोडॉक्स। जीसस क्राइस्ट के टाइम पे आप देख लो, आप पहले ऐसे नहीं थे, उससे पहले भी आप देख लीजिए, बट हाउ यू पीपल बिकम ऑर्थोडॉक्स, सो रिजिड, सो फंडामेंटलिस्ट। ये सब बातें जब बताएं तो लोगों को लगा हाँ सही बोल रहे हो कि हम पहले अच्छे थे फिर बुरे हो गए। तो ऐसे लोगों को जगाना पड़ता है, यही रेनेशा है। रेनेशा का मतलब रीअवेकनिंग इसलिए बोलते हैं, जैसे आपको एक बताऊं कहानी की
बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल इज सपोर्टिंग जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी मीन्स कि जो पूरा ब्रह्मांड है इसके सेंटर में, बीच में अर्थ है। अर्थ, पृथ्वी ब्रह्मांड यूनिवर्स के बीच में है और पूरी दुनिया पृथ्वी के आसपास घूम रही है। दिस इज द थ्योरी ऑफ द बाइबल एंड प्रीस्ट एंड अदर फंडामेंटलिस्ट पीपल वर सपोर्टिंग दिस थ्योरी। आज आपसे पूछें तो आप क्या बोलोगे? पृथ्वी घूम रही है या सूरज घूम रहा है? क्या तो आप बोलोगे कि सूरज के आसपास पृथ्वी घूम रही है, और मैं आपसे बोलूँगी नहीं बाइबल में ये लिखा मानो वरना तुम्हारा गर्दन काट देंगे, तो तुम क्या बोलोगे कि ए मास्टर पागल हो गए हो क्या? ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। तो दैट वाज टाइम, एट दैट टाइम देयर वाज अ फिलोसोफर ब्रूनो ने एक थ्योरी दी। उसने कहा कि द यूनिवर्स इज नॉट जियोसेंट्रिक, यूनिवर्स इज एंडलेस। यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है, इसका कोई सेंटर नहीं है, बट देयर आर मल्टीपल स्टार्स एंड अराउंड द स्टार्स प्लैनेट्स रिवॉल्व। जैसे सूरज एक स्टार है, इसके आसपास कुछ प्लैनेट्स घूमते हैं। ब्रूनो ने कहा कि यूनिवर्स में ऐसा है, यूनिवर्स इज एंडलेस, वहाँ कई सारे स्टार हैं जिनके आसपास प्लैनेट्स वगैरह घूमते हैं। तो चर्च ने बोला माफ़ी मांगो, अभी मांगो, माफ़ी मांगो और इसको सजा दो। ये बाइबल पे क्वेश्चन कर रहा है, ही इज क्वेश्चनिंग बाइबल, स्टूपिड मैन। देन द पीपल ऑफ यूरोप बर्न्ड अलाइव ब्रूनो, उसे जिंदा जला दिया। दिस वाज द लेवल ऑफ द रिजिडिटी, दिस वाज द लेवल ऑफ द ऑर्थोडॉक्सी। आप समझिए इस बात को कि इस हद तक रिजिडिटी थी। तो ऐसे माइंडसेट के जब लोगों को जो बदलना होता है तो उनके लिए उनके धर्म से ही अच्छी बातें निकाल के पहले उन्हें इनलाइटेंड बनाइए। जब वो इनलाइटेंड बन जाते हैं तब जाके वो दिस वाज द पीरियड ऑफ द रिनेशा एंड रिफॉर्मेशन, है ना। तो फर्स्ट टाइम, अब रेनिशा आ कैसे रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है, अगर मोटा मोटी अगर आप समझेंगे तो पहला देखो, एक्चुअली आई नो दिस इज़ द ऑनलाइन क्लासेस, सो मैं बोर्ड पे बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑफलाइन में तो ये चल जाता है, ऑनलाइन में इसीलिए मैं सारी चीज़ों को मटेरियल में ही डाल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। लेकिन आंसर राइटिंग की मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। It is my expectation to you people. Please do answer writing, and I will provide you multiple questions. And today I will also give you some question. You have to submit tomorrow. You can submit on our WhatsApp. You can mail us. You can submit through any other medium. आप कुछ भी कर सकते हो, उसे WhatsApp कर दीजिए, हमें मेल कर दीजिए, आप, है ना, जैसे भी पॉसिबल हो। इससे क्या होगा कि हम आपका आंसर पढ़ेंगे और आपके नाम के साथ साथ हम आपको बता पाएंगे कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करने हैं। सो बिकॉज यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है ना, इसमें मेन चीज़ आंसर राइटिंग है। बिकॉज 3 घंटे में मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। प्रीलिम्स उतना डिफिकल्ट नहीं है, कई बार क्रैक करोगे फिर फेल होके फिर आओगे। इसलिए मेंस पे ग्रिप बनाओ। ज़्यादा बुक्स वगैरह पे नहीं पढ़ना, बिकॉज वो हम ऑलरेडी, आपको यकीन मानिए, आप हमारे मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको दूसरी जगह पे मटेरियल इधर उधर ताका झाकी बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इट इज़ वेरी सॉलिड मटेरियल। हम उस पर काफ़ी काम करके एक एक टॉपिक डाल रहे हैं। काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, मैं खुद उसको एक एक टॉपिक को कई दिन देता हूँ। सो ड्यूरिंग द रिनेशा पीरियड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, लाइक न्यू इन्वेंशंस, कंपास आ गया है, जानते हो, नेविगेटर टाइप, और
प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है, इससे कागज आ चुका है। चाइना में कागज आया है, प्रिंटिंग प्रेस आई है ना। इससे क्या होता है कि जब कागज, थॉट्स, आइडियाज़ है ना, लोगों तक बहुत इजीली सर्कुलेट हो पाते हैं। तो ये किसी भी परिवर्तन को बहुत तेज कर देते हैं। इफ आइडियाज आर स्प्रेडिंग लाइक फॉरेस्ट फायर, देन द स्पीड ऑफ चेंज बिकम मोर हायर। सो अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कारक है। आप एक एग्जांपल से समझिए। आप में से किस किस को लगता है कि आजकल की जो महिलाएं हैं, या स्पेशली आप दिल्ली मुंबई में यहाँ रहते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि फीमेल्स आर मोर एम्पावर्ड देन अर्लियर। आज किसी भी किसी आप लड़की को पकड़ के पूछिए, है ना, तो वो आपको एम्पावरमेंट पे इतना ज्ञान देगी कि उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ, रियल एम्पावरमेंट हो चुका है। द इरा ऑफ फेमिनिज्म। क्या ये इरा ऑफ फेमिनिज्म इसलिए आया है कि आज का जो मेल है, आज का जो पुरुष है, वो बहुत तार्किक हो गया है, बहुत रीजनल हो गया है, या बहुत उसके मन में दया के जो भाव हैं वो उमड़ आए हैं? ही इज़ बिकमिंग मोर हम्बल और जेनरस। इज इट? नो, मेल आर मेल। कभी कभी हो भाई, मेल नहीं बदला है। बट एंशियंट टाइम में मेल का रोल ज़्यादा था, बिकॉज मस्कुलिनिटी का पाव दबदबा था। फावड़े से खोदना है कुआं, अब फीमेल थक जा रही है तो मेल सुबह से कुआं खोदा, शाम को पानी निकाल के पिलाया और बोला देखो हमारी ताकत, हम नहीं होते तो तुम क्या करते। ठीक है, तो फीमेल को लगता था हाँ भाई सही बोल रहे हो। जंगल जा रहे हैं लकड़ी लेने, रास्ते में मिल गया शेर, ठीक है, अब मेल तीर चला के एकदम मार दे रहा है, तो फीमेल को लगता वाह ही इज अल्फा मेल, है ना। तो फीमेल, इसलिए जो मस्कुलिनिटी जब तक थी, जब तक मसल पावर का काम था, तब तक मेल का डोमिनेंस था। आज भी गांव में जहां मसल पावर का बड़ा रोल है, वहां मेल का बड़ा डोमिनेंस है। बट आज क्या है, मेल बोलेगा कि मैं एक फावड़ा मार के इतना खोद देता हूँ, फीमेल जेसीबी पे चढ़ जाएगी और एक बटन दबाएगी, पूरा ट्रॉली भर देगी। सो पायलट बन के प्लेन उड़ा सकती है। आज तीर का ज़रूरत नहीं है ना, न्यूक्लियर पावर तक है हमारे पास। सो आज जो है वो मसल्स का काम नहीं है, टेक्नोलॉजी का काम है। और इस टेक्नोलॉजी ने फीमेल्स को हाउसवाइफ से के जो काम है, जो जैसे खाना बनाना, इन सब से बचा के उसे टाइम दिया। पहले इन कामों में उसका पूरा टाइम निकल जाता था, तो वो अपने लिए कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाती थी। आज आप देखोगे तो हर एक चीज़, बर्तन धुलने का मशीन है, कपड़े धुलने का मशीन है ना, पैर दबाने का मशीन है, क्या नहीं है, हर एक चीज़ का मशीन है। हर चीज़ का मशीन फीमेल्स जो है, जो अर्बन एरियाज़ में जो महिलाएं हैं, उनकी ज़िंदगी में सहूलियत भर दी। इससे वो अपने लिए ऑफिस के काम कर पाती हैं, शिक्षा दीक्षा में अपना लोहा मनवा पाती हैं। तो इट इज़ नॉट मेल, इट इज़ टेक्नोलॉजी विच रेवोल्यूशनाइज्ड द लाइफ ऑफ फीमेल। सो फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा आइडियाज़ से नहीं आया है। अगर कोई बोले कि बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म आया है क्योंकि जेएनयू से लोग पढ़ के निकले हैं, इट इज़ नॉट द रियलिटी। उनका भी रोल है, बट द मेन थिंग इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो रेनेशा के टाइम पे अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसके पीछे एक बात है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे हैं। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमी। ट्रेड रूट ब्लॉक हो गया, अरब से होके जा नहीं सकते, बिना ट्रेड किए यूरोप प्रॉस्पेरस रह नहीं सकता। यूरोप कैन नॉट बी प्रॉस्पेरस विदाउट ट्रेड विद द ईस्ट। तो ट्रेड करना ही करना है। समंदर में कूदने का रिस्क कौन लेगा? जो रिस्क लेगा वो मिडिल क्लास। तो भाई जिसके पास पैसा होगा तो वो अधिकार की भी डिमांड करेगा,
only middle class, only middle class or the bourgeoisie class demand for the political rights. आप देखेंगे गरीब कभी भी बहुत ज़्यादा रिवोल्ट नहीं करते, क्योंकि उनका जो ड्रीम होता है वो ड्रीम सिर्फ और रोटी कपड़ा मकान तक सीमित रहता है. दे आर लिमिटेड टू द bread and butter. But the middle class and upper middle class, they are having more ambitions. This class is ambitious class. They demand for the political rights. उन्हें किंग विंग समझ में नहीं आता. वो कहते हैं we all are equal. They thinks like Rousseau. We all are the equal because we all are equal because we all are the descendants of the nature. सो आप देखेंगे कि रेनेशा में पहला बात मिला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सेकंड इकोनॉमी, ओके, इमर्जिंग बुर्जुआजी क्लास, ट्रेड विद द ईस्ट, एंड न्यू फैक्टर पॉलिटिकल चेंजेस, न्यू एम्पायर वर बिकमिंग एंड नई पावर्स इमर्ज कर रहे हैं. लोग जो बुर्जुआजी सेक्शन वो अपने हाथ में पावर लेना चाहता है. तो ये जो है जो पूरा कॉम्बिनेशन ये रेनेशा ला रहा है. सी वॉइसेस हुई हैं. तो आपको मैं यहाँ तक समझा पाया कि भाई ये कैसे रेनेशा कैसे आया. ठीक है. सो रेनेशा, अब आप ये समझिए जैसे रेनेशा आया, रेनेशा यानी कि यूरोप में एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हुआ जिसने पुरानी व्यवस्था को चैलेंज किया और जिसमें न्यू मर्केंटाइल ग्रुप के लिए काफ़ी सारी संभावनाएं इमर्ज हुई. तो रेनेशा जो आया जिसमें लोग ऑर्थोडॉक्सी पोप की, जैसे पोप बोलते थे बिजनेस मत करो, यूजुअली इज बैड सिंफुल एक्ट. वो बोलते थे कर्जा देना या लेना पाप है. तो जब बात आती है कि कर्जा देना या लेना पाप है और बिना कर्जा दिए इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है. आज आप देखेंगे कि बैंक वगैरह लोन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैपिटल बिल्डिंग इज द मेन टास्क. इफ यू डोंट हैव कैपिटल यू कैन नॉट बी अ गुड एंटरप्रेन्योर. इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ फर्म और यूनिट यू हैव टू फर्स्ट अरेंज कैपिटल. बिकॉज टैलेंट कुछ नहीं होता भाई. अगर टैलेंट तब काम आएगा जब आपके पास कैपिटल होगा. हम बोल दें हम ये बिजनेस डालेंगे बट आई डोंट हैव कैपिटल. मेरे जैसा आदमी अगर बोले कि मैं कल टाटा के को टक्कर दूंगा, कल इसको टक्कर दूंगा, कहाँ से दूंगा? आई डोंट हैव मनी. सो चर्च सेइंग यूजुअली इज बैड थिंग, बट at the same time new generation, new group or the mercantile community was supporting to the usury. So Protestant जो रिफॉर्मेशन का जो टाइम आएगा उसमें आप देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट जो मूवमेंट हुआ वो आपको यूजुरी को यानी पैसे के लेन देन को जायज ठहराते हैं. प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में मैक्स वेबर ने इसके ऊपर किताब लिखी. प्रोटेस्टेंट एथिक्स. सो आप देख रहे हैं कि एक तरफ रेनेशा वाला पीरियड है कि लोगों के थिंकिंग एटीट्यूड चेंज हो रहा है. अब एक बात हम और कर लेते हैं रेनेशा से जुड़ी हुई. कुछ लोग बोलते हैं कि रेनेशा was an intellectual revolution in the European history because before Renaissance Europe was facing dark age. क्या सच में यूरोप में डार्क एज है या किसी एक टाइम पीरियड को डार्क एज बोलना ठीक है? डू यू थिंक सो? बिकॉज एक सिस्टम गलत हो सकता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम गलत हो सकता है, एक सोशल सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन क्या पूरा का पूरा इरा, पूरा का पूरा टाइम सारे लोग
उसमें जोड़ के उनको बोल दो दिस वॉज द डार्क एज। क्या सच में ऐसा था? बट द प्रेजेंट हिस्टोरियंस डोंट एग्री विद दिस पॉइंट। दे से कि अगर ऐसे समझो कि इट इज नॉट हिस्टोरियन सेड टू tagging any period as a dark age is not fair because रेनेशा का जो टाइम है उसमें जो कुछ भी हुआ, वट एवर हैपन, सी वॉइसेस हुई, लोगों ने पोप से क्वेश्चन पूछना शुरू किए, लोगों ने ह्यूमनिज्म पे बल दिया, वो कुछ अलग नहीं था। दैट ऑल वाज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एटीट्यूड। ह्यूमन एटीट्यूड, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ह्यूमन एटीट्यूड का कैसे हिस्सा है। एक बात बताइए, रेनेशा ने क्या क्या टॉपिक चीज़ें डेवलप की? फर्स्ट क्यूरियोसिटी, एक क्यूरियोसिटी यानी कि पूछने, क्वेश्चन करने की, पूछने की एक टेंडेंसी, क्यूरियोसिटी है ना, लिख दूं क्या? क्यूरियोसिटी। एंड सेकंड ह्यूमनिज्म, यानी कि जो ह्यूमनिज्म मानवीय मूल्य, एंड क्यूरियोसिटी, ह्यूमनिज्म, दिस वर्ल्डीनेस एंड सेकुलरिज्म, यही सब डेवलप किया। क्यूरियोसिटी पे बात करते हैं। एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा क्यूरियस कौन होता है? हु इज़ मोर क्यूरियस, अ ओल्ड मैन और अ लिटिल चाइल्ड? कौन ज़्यादा क्यूरियस होता है, बच्चे या एक बूढ़ा आदमी? किसके माथे पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना रहता है? अगर आप किसी बच्चे के साथ गए हैं ना जो 5 साल से ऊपर का है, तो आपको तबाह कर देगा, इतने प्रश्न पूछेगा, पूछ लेगा आपसे कि सूरज ऐसा क्यों है, बस का टायर काला क्यों है ना, शीशे ऐसे क्यों होते हैं, रोड काली ही क्यों है, ठीक है, सूरज से गर्मी क्यों लगती है, चांद से क्यों नहीं लगती है, ये क्यों है, वो क्यों है। आपसे इतने प्रश्न पूछेगा कि आप हाथ जोड़ के बोलोगे प्लीज सॉरी, फॉरगिव मी। भाई आप उस बच्चे के साथ रह नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर हर एक चीज को जानने की लालसा है। दे आर हैविंग डिजायर टू नो ईच एंड एवरीथिंग। बट आप वहीं बूढ़े व्यक्ति को देखिए, तो वो उसमें नहीं होते, वो कहता है ठीक है दुनिया देख ली हमने, अब खत्म। तो अगर हमने बच्चों को चीज़ें सिखाई नहीं है, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है उनमें। हमारे लिटरेचर में आप देखेंगे तो कठोपनिषद है, कठोपनिषद, उसमें आप देखेंगे कि नचिकेता और यम की कहानी है। नचिकेता और यम की कहानी, उसमें आप देखेंगे कि नचिकेता यम से संवाद करते हैं, यानी कि जो यमराज को जानते हो ना, यमराज से इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों। तो वो इसी बात को दिखाता कि क्यूरियोसिटी, द क्यूरियोसिटी इज द कॉमन पार्ट ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन एटीट्यूड। तो बच्चा, छोटा बच्चा होता ना, आग में हाथ भी डाल देता जानने के लिए कि हाँ भाई आग में लगेगा कैसे। दिस इज द क्यूरियोसिटी। तो रेनेशा में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है ह्यूमन बीइंग से, ऑलरेडी पहले से थी। तो पहले से थी ह्यूमन बीइंग्स में क्यूरियोसिटी, पहले से होती है। इट इज द इनबिल्ट पार्ट ऑफ अवर एटीट्यूड। ह्यूमनिज्म, दूसरा पॉइंट मैंने बोला, क्यूरियोसिटी के बाद ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म आप देखिए, मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य भी इनबिल्ट होते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और सड़क पे चलते चलते आप देखते हैं कि कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, एक मार रहा है, दो मार रहा है, और काफ़ी तेज तेज पीटता जा रहा है, फिर उसका वो हाथ काट दे रहा है। तो आपको ये सब देख के अंदर से बहुत बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आप पावरफुल होंगे तो उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे, जबकि आप उस पर्सन को नहीं जानते, यू आर नॉट फैमिलियर दैट पर्सन, बट स्टिल
यू विल ट्राई टू सेव हिम। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर ह्यूमनिज्म है, आप में इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। एंड दिस वर्ल्डीनेस, जब आप ऐसे सोचते हैं कि भाई हम जो ह्यूमन के लिए अच्छा है वो ज़्यादा बेटर है, तो आप दिस वर्ल्डीनेस पे अपने आप आ जाते हैं। लाइक पोप कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तभी आपको हेवन मिलेगा। एंड व्हाट इज़ द गुड वर्क? गुड वर्क आप जब उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ये तो प्रीस्ट बताएंगे कि क्या है, और प्रीस्ट आपको ऐसे ऐसे काम बताएंगे जिससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। कुछ भी बता दें, बोल दे 7 चमगादड़ के पंख लाओ, अब आप सोचोगे इसका क्या होगा। कोई यज्ञ, जैसे इंडिया में यज्ञ का कॉन्सेप्ट है, तो आपको हो सकता है किसी सैक्रिफाइस को के लिए आपसे बोल दिया जाए, तो आप सोचोगे कि ये हम इतना खर्चा कर रहे हैं, आई एम वेरी पुअर पर्सन एंड आई एम spending that much money on these sacrifices, then I will get heaven. That is not surety that I will get heaven after death. कोई तो आपके दिमाग में एक से तो आएगा, ठीक है जिंदगी के बाद स्वर्ग मिले या नर्क वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जितना पैसा है उसका हम खुद तो इस्तेमाल कर लें। आप में से हो सकता है कुछ एक आध लोग होंगे बोले नहीं भैया स्वर्ग के लिए पूरा काम करेंगे, कार नहीं खरीदेंगे, अच्छा घर नहीं लेंगे, बिकॉज सारा पैसा स्वर्ग उनमें लगाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों में मुझे लगता है कि ऐसी टेंडेंसी होगी कि आप वही काम करेंगे जो आपको इस जीवन में सुख दे। यू विल डू ऑल दैट वर्क दैट विल बी that will be useful for your life, और आपको जो प्लेजर देता हो, ऐसे चीज़ें। तो आप सोचिए कि आपके अंदर ऑलरेडी दिस वर्ल्डीनेस चीज आती है नहीं आती, वो आपके थॉट प्रोसेस में, आपके एटीट्यूड में इनबिल्ट है या नहीं है? इनबिल्ट है। तो जब इनबिल्ट है तो आप अपने लिए काम करना चाहोगे, दिस वर्ल्डीनेस हो जाएगा। आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी है, आपके अंदर ह्यूमनिज्म भी है, दिस वर्ल्डीनेस भी है, और आप जब ये सब करोगे तो ऑब्वियसली बात है रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उसको चैलेंज करोगे। अगर क्रिश्चियन होते तो पोप को चैलेंज करते, हिंदू होते तो फिर आप जो आपके जो धर्मगुरु या कोई जो ऐसी बातें करते हो उनको चैलेंज करते। तो जब आप चैलेंज कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूशंस को, दैट्स मीन्स यू आर सेकुलर, you are having a tendency to be secular because you are supporting universal human laws, क्योंकि आपको लगता है कि ह्यूमन भाई धर्म वर्म तो है ठीक है, लेकिन एक इंसान भी तो है। तो आपको पता चलेगा कि रिनेशा आया क्यों, रिनेशा से क्या क्या चीज़ें आई। जैसे रिनेशा के टाइम पे, रिनेशा मैंने बता दिया था क्यों आया। एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तब इससे आइडियोलॉजिकल एडवांस हुआ, यानी काफ़ी सारे थिंकर्स इमर्ज किए, और इसी दौरान जो मिडिल क्लास है वो यूरोप के बाहर गई और उसको बाहर के लोगों से कांटेक्ट हुआ, जिससे न्यू थॉट्स और आइडियाज़ इमर्ज किए। सो टेक्नोलॉजी एंड थॉट्स प्रोसेस एंड इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, है ना, बुर्जुआजी क्लास, ठीक है। ये सब जो कारण थे वो रिनेसा के कारण थे कि रिनेसा किन वजहों से आया। रिनेसा से फ़ायदा क्या हुआ तो आप देख लेंगे, मैंने अभी बताया कि क्यूरियोसिटी पहले से है ना, क्यूरियोसिटी, ह्यूमनिज्म, दिस वर्ल्डीनेस, ये सब जो डेवलप हुआ रिनेसा की वजह। लेकिन अगर हम ये देखें क्या ये रिनेसा ने ही डेवलप करवाया, तो हम बोल सकते कि नहीं, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ह्यूमन एटीट्यूड। सो वो आना ही था, ऐसा नहीं है कि रिनेसा के बिना, जैसे रिनेसा आना ही था, क्योंकि ये सो जब भी किसी को आप हद से ज़्यादा सप्रेस करेंगे तो वहाँ से काउंटर एक्शन होगा ही होगा। आप बॉल को दीवार में मारिए, वहाँ से वो बॉल वापस आएगी,
क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, किसी को पुश टू द बॉल करते हैं, तो एक लिमिट के बाद में वो पर्सन आपको भी वापस आप पर रिएक्ट करता है। तो जब यूरोपियन जो सोसाइटी जो फ्यूडलिज्म में थी, जिसमें डार्क एज आ गया था, उसका रिएक्ट करना बड़ा स्वाभाविक था। इट इज़ वेरी नेचुरल। सो आपको समझ में आ गया कि कैसे रेनेसां आया। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन को हम ऐसे समझेंगे कि सी वॉयजेस हो रही हैं। सी वॉयजेस, पुर्तगाल, स्पेन, the Spain sailor reached at the coast of the America, Columbus 1492, and the Portuguese men reached at the Calicut coast in India in 1498. After that, a new sea route emerged, and after that, एक कॉमर्शियल ट्रेड के मामले में एक ऐसी तेजी आई, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो लोग ईस्ट से ट्रेड करते थे। ट्रेड के बदले में वो लोग गोल्ड या फिर जो प्रीशियस मेटल है वो देते थे, और यहाँ से मसाले, कॉटन, ऐसी चीज़ों को रेशम, सिल्क, उनको लेकर जाते थे। जब उन्हें अमेरिका मिल गया, तो अमेरिका मिलने से क्या हुआ कि उन्हें गोल्ड और सिल्वर के लिए खदानें मिल गई। अमेरिका में आप जाएंगे, चिहुआ जगह है मैक्सिको में, वहाँ आपको सिल्वर के भंडार मिल जाएंगे, सिल्वर माइनिंग पॉइंट। सो सिल्वर माइनिंग पॉइंट, वहाँ से आपको लोग माइन करते थे सिल्वर को, गोल्ड को, और उस गोल्ड को लाके इंडिया में देते थे, इंडिया से ट्रेड करते थे और प्रॉफिट गेन करते थे। तो ऐसे आप देखेंगे तो उनके लिए ये सी वॉयजेस जो थी, उनके लिए कॉमर्शियल रेवोल्यूशन साबित हो गई। ऊपर से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, पेपर आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, स्टीम इंजन आ जाएगा, है ना। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इमर्ज होकर आ रही हैं जिनकी वजह से यूरोप में ट्रेड करना बड़ा आसान हो गया है। सो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो गया है। तो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हो पा रहा है क्योंकि एक माइंडसेट बदल रहा है, जो क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देता है, जो साइंटिफिक इन्वेंशन को बढ़ावा देता है। और इसके साथ ही साथ यूरोप के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ लग गई, एक ऐसी चाबी लग गई जिसने इंडिया से ट्रेड करना बड़ा आसान बना दिया। एक सी रूट और अमेरिका से सोना लाओ, चांदी लाओ, और इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करो। दिस वॉज अ की ऑफ यूरोपियन सक्सेस। सो अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए। मैं जेन्युइनली आपको सॉल्यूशन दूंगा पूरी तरह से। एंड दैट्स, मैं इसीलिए समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को भी लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता हूँ। आई यूज़ बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी। बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आप लोग का हिस्ट्री का जो सेक्शन है, आप प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों एग्जाम में इतना अच्छा करेंगे कि आपको पहली बार क्लास में ही रियलाइज होने लगेगा कि आप जब भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को टच करेंगे, एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर डूइंग गुड एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल देन अर्लियर। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। सो प्लीज़ be concentrated and be focused. So commercial revolution, रेनेसां। जब कॉमर्शियल रेवोल्यूशन और रेनेसां आया, इसने नए एक ट्रेंड को डेवलप किया। इट रिजल्टेड इनटू रिफॉर्मेशन, कैपिटलिज्म, मर्केंटलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म। आज की क्लास में मैं रिफॉर्मेशन तक आपको बताऊंगा। In our next class, we will discuss capitalism, mercantilism, and rise of nationalism. After that, we will go for the American Revolution. So, reformation तक आज मैं आपको कराऊंगा। आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक चीज़ कनेक्टेड है। मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि कैसे ग्रीक एम्पायर जो डेवलप हुआ, ग्रीक एम्पायर डेवलप हुआ, वो टूटा, है ना। कैसे रोमन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट टूटा, बिजेंटाइन एम्पायर, कैसे इस्लाम आया, वो उनके लिए खतरा बना, क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनिटी ने होली रोमन एम्पायर बोल दिया,
है ना, होली रोमन एम्पायर से उन्होंने उनका ट्रेड का रास्ता ब्लॉक किया, तो इन्होंने समुद्री रास्ते ढूंढे तो इनको अमेरिका मिल गया। ठीक है, अमेरिका मिल गया तो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन होने लगी, और धीमे धीमे चाइना में जो साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे हैं उनसे थॉट प्रोसेस या फिर पॉलिटिकल और सोशल थॉट्स जो क्लासिकल पीरियड के और जो दूसरी जगहों के जो थिंकर्स हैं उनके थॉट्स और आइडिया यूरोप में स्प्रेड करने लगे, जिससे रिनेशा आ गया। ठीक है, तो सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आप उन चीज़ों को समझेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आप हिस्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे। और हिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका यही है कि ये हिस्ट्री एक फ्रैगमेंटेड सब्जेक्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली एक सब्जेक्ट है। मैं एक जगह से उठाऊंगा और सारा हिस्ट्री एक सर्कल में बांध दूंगा, और इसमें मुझे टाइम लगेगा, 90 क्लासेस जो मैंने बताई हैं वो मुझे लगेगा, बट इतना आप करने के बाद आपके टिप्स पे होगी हिस्ट्री। दिस इज़ माई प्रॉमिस। और उसके बाद हम लोग जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आप उसमें बहुत कंफर्टेबल होंगे। ये हमारे इंस्टीट्यूट का कमिटमेंट है कि हम लोग धीमे धीमे ही सही, बट हम जो भी चीज़ पकड़ेंगे वो उसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल और उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत स्ट्रांग बनाने का कोशिश करेंगे। सो कम टू द पॉइंट, कॉमर्शियल रेवोल्यूशन। कमर्शियल रेवोल्यूशन पे जाने से पहले कमर्शियल रेवोल्यूशन तो बता दिया, रिफॉर्मेशन पे जाने से पहले मैं आपको रिनेशा से जुड़े हुए कुछ एक दो प्रश्न लिखा देता हूँ। लैपटॉप मुझे खोलना पड़ेगा, ऑफ है, एक मिनट प्लीज। ओके, प्लीज राइट डाउन 2 क्वेश्चंस of Renesha. First, write down. Please write down. The Renesha was the discovery of. The Renesha was the discovery of world. The Renesha was the discovery of world arid of man. ARID. World arid of man. Comment. Next. The Renesha. Write down. Second question. Write down. Next. Second. The Renesha was not a political or religious movement. The Renesha was not a political or religious movement, MOVE, movement, full stop. It was a state of mind. It was a state of mind. Comment. This question was asked in 1994 in UPSC. The Renesha was discovery of world end of man. ये तो मैंने लिखा दिया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं रिनेशा से जुड़े हुए। बाकी नाउ हम लोग रिफॉर्मेशन पे आते हैं। तो रिफॉर्मेशन पे हम लोग आते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं कुछ, तो उनको आपके लिए मैं इन दोनों को आज आपको नहीं लिखा रहा हूँ। आई विल गिव यू मॉडल आंसर ऑल्सो, बट मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इनको कैसे लिखते हैं। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। राइट डाउन विदिन 250 वर्ड्स एंड सबमिट इट। आप लिखेंगे, हम आपको स्पून फीडिंग से लेके आपके एक एक पॉइंट पे आपकी मदद करेंगे, बट प्लीज़ लिखिए। This is my humble request to all of you. So reformation. Actually आपको बताएं, हम अब से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्सी आ चुकी है, क्रिश्चियनिटी में यूनिवर्सल चर्च सिस्टम डेवलप कर चुका है।
देखिए, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, बट एक थोड़ा सा मैं आइडिया और दे देता हूँ आपको, तो ये आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। Suppose this is Italy, this is Rome. The headquarter of the universal church system was in Rome, but जो ब्रांचेस हैं जो चर्च की, ये यूरोप में, इधर जर्मनी, फ्रांस, इधर ये है, इधर ब्रिटेन है आपका। सो यू कैन सी, जैसे ये रोम है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है। जो यूनिवर्सल चर्च है वो यूरोप की सारी चर्च को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको क्या करना है। यूनिवर्सल चर्च सिस्टम, यूनिवर्सल जो मेन चर्च है, ये पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि द मैन पोप ऑफ रोम इंस्ट्रक्ट other priests of various states like France, Germany, England, और उन लोगों को मैन पोप का जो रोम के हैं उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है। जो भी पैसा कलेक्ट होता है डोनेशन के थ्रू, वो सारा पैसा मैन जो पोप है आपके रोम में उनके पास शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे होते होते क्या होता है कि जो दूसरी जगह के जो प्रीस्ट हैं उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है, दूसरी जगह के जो किंग हैं उनके अंदर भी डिसअपॉइंटमेंट है। उन्हें लगता है यार, व्हाई वी आर ट्रांसफरिंग मनी ऑफ आवर स्टेट टू द रोम एंड व्हाई वी आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पोप। तो चर्च के अंदर भी ऐसी कलह है। देयर इज अ फ्यूड among the universal among the various priests, and within the universal church system there was a tension within the universal church system. यूनिवर्सल चर्च सिस्टम के अंदर ही डिसअपॉइंटमेंट है। इसी दरमियान आप देखेंगे कि जर्मनी के एक प्रीस्ट हैं जिनका नाम है मार्टिन लूथर। उन्होंने 1517 में इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाया। उन्होंने दीवारों पर पोस्टर लगा दिए, उसमें 95 क्वेश्चंस पूछे पोप से, यानी हेडक्वार्टर जो रोम के पोप है उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उनसे बोला कि ये बताइए, इनका जवाब दीजिए, ऐसा हम क्यों करें, हम क्यों फॉलो करें आपके सारे इंस्ट्रक्शंस। सो मार्टिन लूथर was the priest of Germany's Wittenberg church. So Martin Luther revolted against the church system, universal church system. The Pope was planning to suppress this revolt, but unfortunately पोप के लिए, fortunately for us, unfortunately Pope could not suppress this revolt because the German noble class supported Martin Luther. जर्मनी के जो नोबल हैं उन्होंने सपोर्ट किया मार्टिन लूथर को, बोला आप सही बोल रहे हैं, पैसा हमारा जाता रोम में है, आप हर एक बात के लिए इंस्ट्रक्शन रोम देता है, आप भी तो प्रीस्ट हैं, आपका भी इंस्ट्रक्शन उतना ही वैल्यूएबल होना चाहिए, बट रोम का क्यों है। आपको मैंने बताया था कि होली रोमन एम्पायर क्यों बना। होली रोमन एम्पायर इसलिए बना कि अगर इन फ्यूचर कभी भी कैथोलिक चर्च पे कोई प्रॉब्लम आए तो होली रोमन एम्पायर उसे बचाएगा। होली रोमन एम्पायर विल वर्क एज अ शील्ड फॉर कैथोलिक चर्च और यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। तो होली रोमन एम्पायर की तरफ पोप ने देखा कि भैया ये देखो, जर्मनी में मार्टिन लूथर व
विरोध कर रहा है हमारा, उसको भगाओ, मारो। लेकिन इस टाइम आप देखेंगे कि होली रोमन एम्पायर का जो किंग है, ही वॉज बिजी इन अ वॉर विद द फ्रांस। सो होली रोमन एम्पायर कुड नॉट हेल्प टू द रोम। होली रोमन एम्पायर हेल्प नहीं कर पाए। जब होली रोमन एम्पायर हेल्प नहीं कर पाए और वहाँ जर्मनी में जर्मन नोबल्स ने मार्टिन लूथर को सपोर्ट कर दिया, तो ये हुआ। तो इसी टाइम पे आप देखेंगे कि एम्बिशस जो राजा हैं यूरोप के अलग अलग स्टेट्स में, वो भी मार्टिन लूथर से एग्री कर रहे हैं कि यस, this is not the simply religious issue, this is also the political issue, because Holy Roman Empire is trying to control other political states. Holy Roman Empire also interferes in the political activities. So other जो आपके राजा किंग्स हैं अलग अलग डायनेस्टी के, वो लोग भी सोच रहे हैं ठीक है, अच्छा ही है, थोड़ा बहुत पोप की ताकत कम होनी चाहिए, हर बात में उंगली करते हैं। कुछ राजाओं के पर्सनल इशू भी थे। जैसे आप देखेंगे कि ब्रिटेन के किंग हैं हेनरी फिफ्थ। ब्रिटेन के जो किंग हैं हेनरी फिफ्थ, हिज फर्स्ट वाइफ was Catherine. Catherine was not able to produce a son or to give birth to a son, and this was very disappointing for the Henry V. Henry V को लगता है कि भाई जो महिला लड़के को जन्म न दे पाए तो उस पर कहीं ना कहीं भगवान का या गॉड का हाथ नहीं है। गॉड इज नॉट हैप्पी विद हर। तो गॉड, उसे लगता था कि जो गॉड है वो इस हमारी जो ये मैरिज है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ही वाज थिंकिंग दैट गॉड इज नॉट ब्लेसिंग हर एंड गॉड इज नॉट हैप्पी with this marriage, so I should divorce her, and without a son who will succeed me। कि भैया एक ये पूरी दुनिया में रहा है कि लड़का नहीं होगा तो हमारा वारिस कौन बनेगा, हमारा वारिस कौन बनेगा, who will be the next heir of this empire। so this was, अब हेनरी फिफ्थ है ना, ये सोच रहे थे कि पूरी दुनिया में ऐसा रहा कि लड़कियों को लेके थोड़ा सा अलग ही लेवल पे खेलते हैं। तो he asked to Pope, give me permission to divorce this lady and remarry। so remarried to another woman। पोप ने कहा यार देखो, डिवोर्स अच्छी बात नहीं है, डिवोर्स विवोर्स मत लो, ये सब ठीक काम नहीं है ना। तो जब पोप ने मना कर दिया, जब तो इन्हें लगा ये बात गलत है, ये हमारे पर्सनल मैटर में भी पोप बोल रहे हैं, पूछने भी गए, बुरा भी लग रहा है। तो फिर क्या हुआ, द हेनरी फिफ्थ सपोर्टेड मार्टिन लूथर, और उन्होंने कहा आप सही कर रहे हैं, ये पोप ठीक आदमी नहीं है, पोप का प्रभाव कम होना चाहिए, द इफेक्ट ऑफ रोम शुड रिड्यूस। एंड ऐसे आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर को बड़ा सपोर्ट मिल गया। मार्टिन लूथर का जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है, दिस स्प्रेड लाइक अ फॉरेस्ट फायर इन होल ऑफ यूरोप, इन स्विट्जरलैंड, इन ब्रिटेन, इन जर्मनी, इन फ्रांस, मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रोटेस्टेंटिज्म स्प्रेड। यहाँ से आप देखेंगे प्रोटेस्टेंटिज्म एंड मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट के ये जो नया मूवमेंट है इसमें मिडिल क्लास ने बड़ी भूमिका निभाई। वाई द मिडिल क्लास प्लेड अ ग्रेटर रोल इन दिस मूवमेंट? एज आई टोल्ड यू दैट church was against of usury, church was against of accumulation of money, church was against of richness or wealthiness, because and this was very disappointing for the middle class।
उन्हें लगता था भैया पैसा नहीं रख सकते, कर्ज दे ले नहीं सकते, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, तो हमारा बिजनेस करना ही बेकार है। ये कैसा धर्म है जो बार बार बीच में आ जा रहा है? सो बट मार्टिन लूथर्स प्रोटेस्टेंटिज्म गिव परमिशन टू यूजरी, गिव परमिशन टू एक्यूमुलेट मनी, गिव परमिशन टू डू बिजनेस। सो मिडिल क्लास को लगा ये बात हुई ना, ये धर्म सही है जो बताता है कि बिजनेस करो, लाभ कमाओ, पैसा रखो। बिकॉज अब उन्हें लगा कि हाँ नहीं, मिडिल क्लास सपोर्टेड मार्टिन लूथर एंड मिडिल क्लास वॉज वेरी पावरफुल बिकॉज दे वर हैविंग मनी। जिसके पास पैसा होता ना वही सबसे पावरफुल। सो मिडिल क्लास ने सपोर्ट किया, नोबल्स ने सपोर्ट किया, किंग ने सपोर्ट किया, एंड दिस वाज द ग्रेटर jolt for the or greater jerk for the Catholic Church। एंड यहाँ से आप देखेंगे जो यूनिवर्सल जो चर्च सिस्टम है वो डगमगा गया। यूनिवर्सल चर्च सिस्टम के लिए आप देखेंगे कि यहाँ से खतरा, ये उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तो ये तो आप रिफॉर्मेशन को अगर दो भागों में बांटिए, जब भी रिफॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे तो रिफॉर्मेशन को आप 2 पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे कि इंटरनल रिफॉर्म, जैसे यूनिवर्सल चर्च सिस्टम के अंदर जो कलह है, द टेंशन विद इन द यूनिवर्सल चर्च सिस्टम जो मार्टिन लूथर वाला, एक बाहर से चर्च को बदलने की कोशिश। बाहर से कैसे? I told you earlier that ideological changes are not that much constructive as the material changes, because मार्क्सिज्म में ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे 2 डिबेट चलती हैं, मैटर और आइडिया। कभी बात हुई तो मैं इस पर बात करूँगा कि हु इज़ मोर रेलिवेंट। पहली बात तो इस पर बहुत ज़्यादा निष्कर्ष निकलता नहीं है, बट फिर भी इन फ्यूचर वी विल डिस्कस दैट। एक आइडियोलॉजिकल, तो विद इन मार्टिन लूथर ने एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर तो रखा, लेकिन मटेरियल फैक्टर जो बाहर से चर्च को बोल रहे थे रिफॉर्म करने के लिए, वो ये था कि इकोनॉमी चेंज हो रही है। होल इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द यूरोप वाज चेंजिंग। नाउ द यूरोपियन इकोनॉमी वाज रेडी फॉर कमर्शियल रेवोल्यूशन, वाज रेडी फॉर new journey of trade with Asia, and scientific invention was challenging to the orthodoxity of the church। साइंटिफिक इन्वेंशन उन सारी बातों को खारिज कर रहे हैं जो चर्च पहले से बताते जा रहे हैं। जो चर्च बोल रहा है कि सूरज पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, साइंस बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब साइंस जब लोगों के दिमाग को खोल रही है तो कैथोलिक चर्च को तो झटका लगेगा ही लगेगा। सो साइंटिफिक इन्वेंशंस, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकल चेंजेस, अ न्यू सिनेरियो, अ न्यू क्लास वाज इमर्जिंग as a new with the new political ambitions. So the new class was emerging. So this was the time of रिफॉर्मेशन। वो नई क्लास चाहती है कि बदलाव लाइए, अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो हम आपके ढांचे को तोड़ देंगे। वी विल ब्रेक दिस स्ट्रक्चर। और जो ये स्ट्रक्चर हर टाइम पे होता है, अभी तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। मैंने कल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आज अभी अमेरिकन रेवोल्यूशन से आप देखिए, आप इतना एंटरटेन करेंगे, आपको लगेगा कि आज तक हम क्या मिस कर रहे थे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद द मॉडर्न इंडिया, एंड आई एम श्योर यू विल बी द चैंपियन ऑफ द मॉडर्न इंडिया आफ्टर दिस क्लास। दिस इज माई प्रॉमिस।
So काउंटर रिफॉर्मेशन, इकोनॉमी चेंज हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, पॉलिटी चेंज हो रही है, तो एक जो रिफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं ये सब कैथोलिक चर्च जो है उसके लिए एक पीछे से धक्का मार रहे हैं कि बदलो भाई बदलो, प्लीज डू सम रिफॉर्म्स, वी आर नॉट स्टैटिक, we are mobilized and modern society, we want to some new changes. So मैक्स वेबर ने किताब भी लिखी है इस पे, उसमें द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. So we have discussed the reformation, we have discussed the commercial revolution, Renaissance, all the parts we have covered, and tomorrow we will discuss a new topic, capitalism, mercantilism, and rise of nationalism. These all will topic we will cover, and after that we will go for American Revolution. So this is for today, and in our next class we will go further. And so thank you for watching us.